Okay, so we're gonna do Winter 2023, Paper 1, Variant 2 today. First question states, which combinations of lenses for a light microscope will give the greatest magnification? So हमारे पास अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालनी होती है ऑफ द टू lenses collectively तो हम दोनों की पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसकी क्या कहते हैं टोटल पावर would be magnification power would be times 500. This would be times 400. This would be 600 and then 1500. So the answer is D. As J. The diagram shows an electron micrograph of a virus particles in a human nucleus. Walaikum assalam, Fiza. What is the diameter of the labeled virus particle? So we have the magnification and this is the virus particle. Obviously in the example आप क्या कहते हैं scale से इसकी जो diameter है उसको आप measure करेंगे and this diameter would actually come out to be I think 3 point something millimeters that we can call. I did this on the paper. Yeah, 3.6 millimeters ये diameter आएगा जब आप scale से इसको measure करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका image size हो जाएगा. You have the magnification given. Actual size के लिए we would simply put this into the formula magnification equals to image size upon the actual size. इसको हम manipulate कर देंगे A equals to I upon M. अच्छा now you can see कि आपके पास जो वो है क्या कहते हैं ऑप्शंस हैं they're either in micrometers or nanometers. तो आप ये कर सकते हो कि आप माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो अपने क्या कहते हैं इमेज साइज को. सो इफ वी कन्वर्ट दिस इनटू क्या कहते हैं नैनोमीटर्स तो हमें सिंपली 3.6 को मल्टीप्लाई करना होगा विद 10 to the power 6 because 3.6 multiplied by 1000 would give us micrometers and then multiplied by 1000 would give us nanometers. तो हमारे पास nanometers में reading आ जाएगी. So this would come out to be 150 nanometers. अच्छा जी अब 150 nanometers से similar हमारे पास option क्या है? That is the 1.5 into 10 to the power 2 nanometers क्योंकि 1.5 times 100 हम करेंगे तो that would give us 150 nanometers. What is correct about the synthesis and release of the glycoprotein mucin in goblet cells? The protein is produced on ribosomes and a carbohydrate chain is added in the Golgi body. This is correct कि हमारे पास ribosomes में basically क्या कहते हैं जो polypeptide chain है वो produce हो रही होती है और हमारे पास जो protein modification हो रही होती है वो कहाँ पे होती है वो Golgi body में होती है. The glycoproteins are packed into vesicles in the Golgi body forming lysosomes. That's incorrect. Basically, lysosomes हमारे पास वो vesicles होते हैं या वो organelles होते हैं which contain hydrolytic enzymes, which is different from glycoproteins, obviously. So हमारे पास 2 is incorrect. Secretory vesicles containing the glycoprotein move from the Golgi body and fuse with the cell surface membrane. Yes, और फिर वो इसको release कर देंगे और हमारे पास mucus बन जाएगा. So B is the correct answer. What are functions of microtubules? अच्छा जी. Allowing movement of cilia in a bronchus. Yes, बिल्कुल. Attachment to centromeres during metaphase. बिल्कुल हमारे पास basically जो spindle fiber होता है that is made up of microtubules. तो हमारे पास yes metaphase में भी उनका रोल होता है. Moving secretory vesicles around a cell. Yes, इस process को हम क्या बुलाते हैं? इस process को हम cyclosis बुलाते हैं. Not something we study in as a part of our syllabus. But basically cyclosis में होता क्या है कि हमारे पास let's say this is a cell. सही है. अब इस सेल में हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से प्रेजेंट है एंड तीसरा हमारे पास ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म है. ये पूरा साइटोप्लाज्म है आपका. इस साइटोप्लाज्म में आपके मल्टीपल ऑर्गेन्यूल्स जितने भी है राइबोसोम्स हो गए माइटोकॉन्ड्रिया हो गए क्लोरोप्लास्ट हो गए ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट. हमारे पास जो विद इन द सेल मूवमेंट होती है ऑर्गेन्यूल्स की वेसिकल्स की वो किस तरह से होती है? वो इस तरह से होती है कि हमारे पास जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना these microtubules facilitate the movement of things. किस तरह से हमारे पास ये microtubules एक तरह से ripples create कर रहे होते हैं in the cytoplasms या हमारे पास for example जो vesicles हैं वो इनके ऊपर इस तरह से बैठी भी होती हैं एक तरह से. you can imagine they serve as a bench and it is like a moving bench और वो एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज की मूवमेंट में माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो फैसिलिटेट कर रही होती है. इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग साइक्लोसिस बुला रहे होते हैं. So cytoskeleton का basically ये काम होता है and because microtubules are basically one of the components of the cytoskeleton.
So yes, moving secretory vesicles around a cell is something that we do associate with, what do you say, microtubules. So A is the correct answer. Which organelles contain nucleic acids? Okay, Golgi body does not contain nucleic acid, ना RNA होता है ना DNA होता है, so A and B तो हमारे options नहीं हो सकता. Mitochondria and chloroplasts do contain it, so obviously option number D is the correct answer. Some features of cells are listed: cell wall, cell surface membrane, ribosomes. Which features can be found in plant cells and prokaryotic cells? हमारे पास plant cells और prokaryotic cells में cell wall भी होती हैं, cell surface membranes भी होती हैं, और हमारे पास क्या कहते हैं, ribosomes. Which bonds are present in all viruses? Phosphodiester bonds, peptide, covalent. अच्छा जी. Now हमारे पास क्या कहते हैं? Why don't you guys tell me? Phosphodiester bonds होंगे? बिल्कुल होंगे. क्यों नहीं होंगे? इसलिए होंगे phosphodiester bonds because हमारे पास phosphodiester bonds are present in RNA एंड इन डीएनए. तो हमारे पास आरएनए वायरस हो या डीएनए वायरस हो, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, सो दिस वुड बी प्रेजेंट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पेप्टाइड एंड द कोवलेंट बॉन्ड, एक तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बजाते खुद एक कोवलेंट बॉन्ड है बिकॉज इसमें फॉस्फोरस होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है. सो इट्स बेसिकली COPOC. सो ये पांचों जो चीजें हैं, पांचों जो के कहते हैं हमारे पास एटम्स जो एसोसिएटेड है, ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, सो दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड. सब्सिक्वेंटली जो हमारे पास प्रोटीन कोट होता है कैप्सिड का, उसमें हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होगा. पेप्टाइड बॉन्ड इज बेसिकली कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन. तो हमारे पास ऑब्वियसली ये तीनों जो चीजें हैं वो प्रेजेंट होती हैं इन आवर viruses, in all the viruses. Okay. Now this is an experimental case study kind of a question. A student carried out the Benedict's test on 4 different concentrations of glucose solution and then recorded the time taken for the first appearance of a color change. तो उसने color change कब पहली दफा appear होता है उसका time taken उसने record किया. The student found it difficult to identify the first appearance of a color change and consistently timed each solution for 2 seconds after the color change. This is a very important statement. सो हर दफा उसने, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि किस पॉइंट पे हमारे पास कलर चेंज आ रहा है, तो वो एटलीस्ट 2 सेकेंड्स वेट करता था और फिर वो क्या कहते हैं तब टाइम करता था. सो हमारे पास +2 सेकेंड्स का लैप्स आ रहा था इन हिज मेजरमेंट ऑफ टाइम. दिस इंट्रोड्यूस्ड अ सोर्स ऑफ एरर इनटू द एक्सपेरिमेंट. Which statements about this error are correct? The effect of the error will be reduced if the student performs 3 repeats at each concentration of glucose. What do you guys think? क्या ये करने से हमारे पास source error की जो chances हैं या effect of the error की जो chances हैं वो कम होंगे? नहीं होंगे, बिकॉज ये कब होता है जब हमारे पास एरर जो है वो रैंडम हो. दिस एरर इज नॉट रैंडम, ये हमारे पास एक सिस्टमैटिक एरर है. सिस्टमैटिक एरर एक ऐसा एरर होता है जो हमारे पास हम जो भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसमें या तो प्लस कुछ हो रहा है या माइनस कुछ हो रहा है इन द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी. और क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, दिस इज व्हाई आई हाईलाइटेड द कंसिस्टेंटली टाइम वाला बात, कि ये हर दफा जब भी वो क्या कहते हैं टाइम टेकन मेजर कर रहे हैं तो कंसिस्टेंटली एट एवरी रीडिंग ये प्रॉब्लम आ रही है. So now this is not a random human error, it is a systematic error. Random errors हम eradicate कर सकते हैं इस तरह से average out करके, not systematic error. The error will prevent the student from identifying which solution has the highest concentration of glucose. नहीं, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिफिकेशन क्वालिटेटिव होती है. कलर चेंज हमें क्या कहते हैं, कलर चेंज हम उसके थ्रू क्या कहते हैं, ऑब्वियसली अपनी विजुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू प्रोटेक्ट करेंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम टेकन. The error is a systematic. The error is systematic as the student consistently timed each solution for 2 seconds after the endpoint. Yes, and option number D is the correct answer. Which statements about amylopectin and glycogen are correct? Amylopectin and glycogen contain 1,4-glycosidic. Yes, amylopectin contains beta glucose. Amylopectin does not contain beta. Glycogen contains more 1,6 branches than amylopectin. Yes, and hence option number B is the correct answer. How many statements about fatty acids are correct? Fatty acids are either saturated or unsaturated. Yes, fatty acids always have at least 2 double bonds. नहीं, हमारे पास fatty acids would have at least 1 double bond.
क्योंकि अगर हमारे पास लेट्स से एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसमें फॉर एग्जांपल लेट्स से इट इज एन 18 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो 18 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमें कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। सिर्फ हमें एंड पर सी डबल बॉन्ड ओ एच में क्या कहते हैं, एक डबल बॉन्ड नजर आएगा। सो ऑल फैटी एसिड्स बिकॉज दे हैव द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, तो उनके पास डबल बॉन्ड ओ तो प्रेजेंट होगा, बट बाकी की गारंटी नहीं है कि बाकी भी हमारे पास डबल बॉन्ड्स होंगे कि नहीं होंगे। सही है। सो दिस इज आउट, लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स आर वेरी गुड एनर्जी स्टोर्स। यस, हमारे पास जितने ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा क्या कहते हैं हमारे पास एनर्जी रिच बॉन्ड्स होंगे, तो उतना अच्छा हमारे पास एनर्जी रिजर्व होगा उस चीज का। Fatty acids are insoluble in water and do not affect the water potential of the cell. Now, what do you guys think about this statement? Is this a correct statement or is this an incorrect statement? Partially correct. So if it is partially correct, then do we consider it as correct or incorrect? Okay. Now, हमारे पास fatty acids are insoluble in water. This part, does it seem to be correct to you all? ये वाला पार्ट से तो सभी अग्री करते हैं कि हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं दे आर insoluble in water. Now let's talk about the other part. And they do not affect the water potential of the cell. Now this is where students get confused. Okay, now हमारे पास क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल को क्या चीज अफेक्ट करती है? वाटर पोटेंशियल के लिए हमने एक वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, फॉर्मूला पढ़ा था, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू द सोल्यूट पोटेंशियल plus pressure potential. Do you remember this formula relationship? Now, can you tell me, is fatty acid or any non-polar compound a solute? Do you think that they're a solute? सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट वो मॉलिक्यूल होता है, वो पार्टिकल होता है जो कि डिसॉल्व कर सकता है वाटर के अंदर, राइट? तो हमारे पास जो इनसॉल्यूबल चीजें हैं वो सोल्यूट्स तो नहीं हो सकते, बिकॉज सोल्यूट की डेफिनेशन एज आई जस्ट सेड इज एनीथिंग, एनी कंपोनेंट दैट डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट. नाउ फैटी एसिड इज नॉट डिसॉल्विंग इन द सॉल्वेंट, so fatty acid is not a solute. So if it is not a solute, would it affect the water potential? It would not affect the water potential, and hence this statement is correct. So C is the correct answer. इट्स ऑल्सो लाइक हम जैसे उनके लिए पढ़ते हैं जो हमारे पास स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, हमने टेबल ऑफ कंपैरिजन में पढ़ा था ना कि हमारे पास वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं. ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं इसका क्या मतलब, मैंने बताया था कि हमारे पास उनकी प्रेजेंस से जो वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल है वो चेंज नहीं होता. ऑन द कॉन्ट्री, अगर ग्लूकोज सेल में आएगा, ग्लूकोज हाईली ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है. व्हेनेवर ग्लूकोज और एनी मोनोसैकेराइड वुड एंटर द सेल, इट वुड कॉज वाटर टू एंटर बाय ऑस्मोसिस. वाई? बिकॉज जब भी ग्लूकोज किसी सिस्टम में जाता है वो उस जगह का वाटर पोटेंशियल कम कर देता है. हमारे पास जितने भी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स होते हैं दे आर वाटर ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, ताकि वो अपने साथ पानी को ना खींचे. तो हमारे पास कोई भी स्टोरेज मॉलिक्यूल होगा वो क्या कहते हैं, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है. ठीक है. सो फैटी एसिड्स आर आल्सो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव. The diagram represents an amino acid. R represents a variable side chain, which is not a possible side chain. अच्छा जी, हमारे पास जो ये R ग्रुप है उसकी जो बॉन्डिंग है ना वो कंप्लीट नहीं होगी. मतलब उसकी क्या कहते हैं, एक R ग्रुप के पास एक बॉन्ड ऐसा होना चाहिए जो वेकेंट हो, ताकि वो इस कार्बन के साथ क्या कहते हैं एक बॉन्ड बना सके. ना CH3, अगर CH3 की बात करें, CH3 तो एक बहुत कॉमन R ग्रुप है क्योंकि वो आपके अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना सकता है. सो ए इज आउट. अगर हम CH2SCH3 को देखें तो हमारे पास सिंपली, अगर मैं इसको ड्रॉ आउट करूं, CH S3 और S हमारा यहाँ आ जाएगा. अब इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट है. नो सॉरी, इसकी भी बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं. आई, एक सेकेंड, सॉरी माय बैड. तो एक CH2, basically would be C bonded to S,
CH3 would be another molecule, और हमारे पास क्या कहते हैं, दिस सल्फर वाला एंड वुड बी अनबॉन्डेड, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड। सो हमारे पास जो सल्फर वाला पार्ट है दैट वुड बी अनबॉन्डेड, और यहाँ से हमारे पास क्या कहते हैं, वो एसोसिएट करेगा विद द अमीनो एसिड। लेट मी जस्ट कंफर्म एक दफा और कि मैंने सही बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया, बिकॉज it's been ages that I've seen organic chemistry. Yep, this is correct. तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, दिस इज वेयर हमारे पास क्या कहते हैं, अमीनो एसिड के साथ वो एसोसिएट हो। तो दिस इज ऑल्सो अ आर ग्रुप, तो ये बिल्कुल एसोसिएट कर सकता है आपके अमीनो एसिड के साथ। नाउ वी टॉक अबाउट CH2, CONH2, अगर इसको हम ड्रॉ आउट करें, सो CH bonded to C, bonded to NH and a double bond O, तो हमारे पास ये वाला जो कार्बन है ये वेकेंट है, ये बॉन्ड करेगा हमारे अमीनो एसिड के साथ। Now if we talk about this structure, so option number D, if I draw that out, so for that we have a carbon, वो कार्बन एक अदद O के साथ एसोसिएटेड है, OH ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, then we have it associated with a C which is bonded with an OH as well as an H. Then we have a CH which is again bonded to OH, and ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। So this is basically CH2 bonded to OH, then C bonded to H and an OH, then we have a CH2 bonded to OH, and this is completely bonded, and hence it cannot attach to a carbon atom of the amino acid, and hence option D is the correct answer. Is this clear? Any questions? So for these types of the questions, you have to draw out the structural formula to understand कि आपके पास वो साइड चेन से एसोसिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा जी, the graph shows the effect of an enzyme on a reaction. Which row identifies X, Y, and Z? X. हमारे पास X with is the uncatalyzed reaction. Why is X the uncatalyzed reaction? क्योंकि इसकी जो activation energy है वो ज्यादा है। So हमारे पास जो एंजाइम है वो जो रिएक्शन को कैटलाइज करती है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है। So definitely X has to be the uncatalyzed reaction. Now if we talk about Y would be the catalyzed reaction. Z. हमारे पास Z, energy gained by the product, overall energy released during the reaction. अच्छा जी, हमारे पास सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं? सबस्ट्रेट्स आर बेसिकली द रिएक्टेंट्स, ठीक है। हमारे पास केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, आपके पास जो एंथैल्पी चेंज है वो कहाँ जा रहा होता है, वो रिएक्टेंट से सबस्ट्रेट की तरफ जा रहा होता है। हमारे पास बेसिकली ये हमारा एंथैल्पी चेंज जो है इट इज नेगेटिव। हमारे पास अगर नेगेटिव एंथैल्पी चेंज है तो हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंड हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The graph shows the results of two experiments on the effect of increasing substrate concentration on the rate of the enzyme catalyzed reaction. One experiment was at a high concentration of enzyme and the second was at a low concentration of enzyme. All other variables were standardized. What would limit the initial rate of reaction at point X? आज देखिए, हमारे पास देखो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन तो जो है वो तो पॉइंट एक्स पे इट स्टॉप्स बीइंग द लिमिटिंग फैक्टर। व्हाई? बिकॉज हम पॉइंट एक्स के बियॉन्ड क्या कहते हैं, अगर सबस्ट्रेट बढ़ा भी रहे हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं, एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। pH and temperature are standardized. They've told us कि हमारे पास enzyme concentration और substrate concentration के अलावा बाकी सब चीजें standardized हैं. This leaves us with the option A as the correct answer. Clear है? Any questions? Which statements about the Michaelis-Menten constant of an enzyme are correct? At the Km value, half the active sites of the enzyme should be occupied by the substrate. Yes, हमारे पास Km value क्या होती है? Km value is the substrate concentration जिसपे हमारे पास 50% एंजाइम एक्टिविटी होती है। So 50% को अगर हम किसी और तरह से एक्सप्रेस करना चाहे तो 50% is basically half the maximum rate of reaction.
So at the Km value, yes, half the active sites of the enzyme would be occupied by the substrate. Km represents the substrate concentration at which enzyme is working at half its maximum rate. वही बात है, Km is substrate concentration at which हमारे पास Vmax upon 2 यानी कि half the maximum rate होता है. The lower the Km value, the lower the affinity of the enzyme to its substrate. Incorrect. इसका opposite होता है. Lower the Km value, greater is the affinity of the enzyme to its substrate. So ये lower नहीं, ये हमारे पास greater होना चाहिए. When an enzyme has a high Km value, the enzyme catalyzed reaction will proceed very slowly to its maximum rate. Yes, which makes 1, 2, and 4 the correct choice of answer. Which component of cell surface membrane helps to reduce fluidity of the phospholipids at high temperatures? Phosphate group, unsaturated fatty acids, cholesterol, or proteins? The answer would be cholesterol, because cholesterol is responsible to maintain or regulate the fluidity of the membrane. Plant cells were left for 50 minutes in 3 different sugar solutions, 10%, 5%, and 1%. The water potential in the cytoplasm of the 3 cells was the same at the start of the experiment. The diagram shows the appearance of the cells after 50 minutes using a light microscope. Which conclusion is correct? अच्छा, तो हमारे पास ये 3 cells हैं, cell P, cell Q, cell R. These 3 cells are placed in 10%, 5%, and 1% concentration. और हमारे पास initially इन तीनों cells का जो water potential था, cytoplasm का जो water potential था, वो same. After 50 minutes, what we can see is कि हमारे पास ये वाला जो सेल है ये प्लाज्मोलाइज हो गया, श्रिंक हो गया इसका इनर सेल्युलर कंटेंट. तो इसका मतलब है दैट वाटर मूव्ड आउट, एंड इफ द वाटर मूव्ड आउट तो ये सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगी उसमें रखा गया होगा. तो दिस वुड बी इन द 10% sugar solution. Now if we compare cell Q and cell P, between cell P and cell P and cell Q, which cell appears to be turgid? किसने बहुत ज्यादा water content absorb किया? Cell Q appears to be turgid. So हमारे पास क्या कहती हैं, ये hypotonic solution में रखा गया होगा, यानी कि इसके अंदर water enter हुआ होगा. So this would be 1%. And then we can say ये हमारे पास 5% वाली solution में रखा गया है. Now, cell P has the same concentration of sugar inside and outside the cell. Now, हमारे पास ये कहते हैं जो movement of water होती है वो depend करती है on the amount of water that is present. ठीक है, हमारे पास क्या कहते हैं, water potential की basis पर हम assess कर रहे होते हैं हमारा osmosis, the movement of water in and out of the cell. Cell Q is flaccid and cell P is plasmolized. No, हमारे पास cell Q is turgid. It is not flaccid. Cell Q was placed in the 1% solution. Yes, we have come to this conclusion that cell Q was placed in the 1% solution. The sugar solution outside cell R has a less negative water potential than inside cell R. Less negative water potential का मतलब ये होता है hypotonic या ज्यादा वाटर पोटेंशियल हो. अगर हमारे पास सेल आर को हम एक ग्रेटर वाटर पोटेंशियल वाली सोल्यूशन में रखते तो सेल आर से कभी भी वाटर बाहर नहीं जाता. सो all A, B and D are incorrect. C seems to be the only plausible statement. Any questions? Clear? The graph shows the effect of increasing the side length of agar cubes on the surface area and the volume of the cubes, which row correctly identifies line 1, line 2, and the effect of increasing side length on the surface area to volume ratio of the cubes. जब भी हमारा क्या कहते हैं लेंथ इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होता है, हमारा सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज होता है. ठीक है, एक तो ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है दैट इंक्रीजिंग द लेंथ वुड डिक्रीज द सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. अच्छा जी, नाउ when you look at the graph, can you tell me कि हमारे पास ज्यादा किसका क्या कहते हैं वो बढ़नी चाहिए, ज्यादा अफेक्ट किसका होना चाहिए इंक्रीज पे? वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा इन लेंथ इंक्रीज करने से या सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ेगा? वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा, एंड दिस वुड बी सरफेस एरिया. नाउ इफ एनीबडी इज कंफ्यूज्ड कि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, सिंपल मैथ. हमारे पास जो वॉल्यूम है
वो इंक्रीज करती है बाय द पावर ऑफ क्यूब। पावर ऑफ क्यूब की क्या वैल्यू है? 3। सरफेस एरिया जो इंक्रीज करता है वो इंक्रीज करता है बाय द वैल्यू ऑफ स्क्वायर जिसकी पावर होती है 2। अगर हम ये करके भी देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनिशियली लेट्स से इनिशियल लेंथ हमारे पास थी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 1 सेंटीमीटर का वॉल्यूम क्या होगा, तो 1 सेंटीमीटर का वॉल्यूम यू वुड से एल क्यूब होगा। और हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब, आप मुझे इसका वॉल्यूम बता दोगे। और सरफेस एरिया क्या होगा 1 सेंटीमीटर पे? 6 L स्क्वायर। तो 6 L स्क्वायर वुड बी 6 सेंटीमीटर क्यूब। If I increase this length to, let's say, length becomes now 2 centimeter. So 2 centimeter का volume would become 2 का cube would be 8 centimeter. And surface area is 6 L square. So 6 times 4, it would become 24. Now, यहाँ पर you guys will ask me कि यहाँ पर तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है और हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। सो हाउ इज इट कि आप कह रही हैं कि सरफेस एरिया कम इंक्रीज होगा और वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होगा? देखो, हमारे पास रिलेशनशिप देखते हैं। इफ यू सी, कैन यू गाइस टेल मी कि हमारे पास जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो कितनी फैक्टर से इंक्रीज हुआ है? हम वन को कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट दिस वॉल्यूम? 8 टाइम्स। डू यू ऑल एग्री? टाइम्स 8 हुआ है। यानी ओरिजिनली हमारे पास था 1 और अब ये हो गया 8, so we can say this has become times 8. If you look at 20, if you look at the increase in surface area, 6 से अगर हमें 24 पे जाना है तो हम कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं अपने सरफेस एरिया को? 24 डिवाइड बाय 6 इज 4 if I'm not mistaken, right? Yeah. टाइम्स 4 के फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है। सो अब मुझे बताओ, इंक्रीज ज्यादा किस में आया? वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हुआ या सरफेस एरिया ज्यादा इंक्रीज हुआ? वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो। एनीबडी हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप? और अगर हम सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो की बात करें, पहले हमारे पास सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो वाज 6:1। नाउ इट वुड बी 24:8, which would become 3:1। हाउ इज इट 24? हमारे पास जो सर्फेस एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज 6 L स्क्वायर। सो 6 टाइम्स 2 स्क्वायर, सो ये हमारे पास हो जाएगा 6 टाइम्स 4। 6 टाइम्स 4 इज 24, राइट? हमारे पास सर्विस एरिया वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज कर रहा है और हमारे पास लाइन 2 इज सर्फेस एरिया, लाइन 1 इज वॉल्यूम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? A human embryo consists of 12 cells at the start of day 1. The cells divide by mitosis for 4 complete days at a rate of one division every 32 hours. अच्छा जी. What is the maximum number of cells in the embryo at the end of day 4? So they're telling us that when we started, तो हमारे पास total 12 cells थे first day पर और हमारे पास 4 दिन तक ये cells divide होते रहे। And they told us कि एक complete mitotic cell cycle की जो duration है वो 32 hours है। So simply हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि हमारे पास 4 complete days में कितने hours होते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि 4 days में कितनी दफा माइटोसिस हुआ होगा, सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ सेल्स। सो वन डिविजन टेक्स 32 आवर्स। तो हमारे पास 4 days में 4 टाइम्स 24 कर देंगे, तो 4 टाइम्स 24 इज 96। एक सेकेंड, लेट मी कैलकुलेट दिस। 96 आवर्स ये होते हैं इन 4 days। So 96 divided by 32 makes us gives us 3 divisions. तो यानी कि 4 दिन में हमारे पास टोटल 3 दफा माइटोसिस हुआ होगा। सो लेट्स से ये डे 1 है, डे 1 से डे 4 तक कितनी दफा माइटोसिस हुआ है? 3 दफा माइटोसिस हुआ है। डे 1 पे हमारे पास थे 12 सेल्स। पहली दफा माइटोसिस हुआ, टाइम्स 2 कर देते हैं 24 सेल्स। दूसरी दफा माइटोसिस हुआ, टाइम्स 2 कर देते हैं
48 cells, and the third mitosis would be 96 cells. Answer is B. Which diagrams show roles of mitosis? 1, 2, 3 and 4. अच्छा जी, 1 में क्या है? 1 में हमारे पास ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो ये ग्रोथ हो रही है, दैट इज बेसिकली माइटोसिस। 2 में हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारा फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट है, जो हमारे पास फीमेल एंड मेल पार्ट ऑफ द प्लांट है, उससे हमारे पास बन रहा है, क्या कहते हैं, फ्रूट। और या ना, यहाँ पर एक कॉमन जो मिसकंसेप्शन होती है वो ये होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस होता है। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। बट क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खाली मियोसिस होता है? Meiosis is only the part where gametes are made. तो हमारे पास जब ह्यूमंस में स्पर्म और एग बनता है तो हमारे पास क्या कहते हैं, वो प्रोसेस खाली मियोसिस का होता है। उसके बाद जब जाइगोट बनता है तो पूरी जो रिप्रोडक्शन हो रही होती है उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, माइटोसिस हो रहा होता है। सिमिलरली प्लांट से भी मियोसिस कब बनता है, जब पोलन बनता है और हमारे पास जब ओव्यूल्स बनते हैं, दैट इज द टाइम जब मियोसिस हो रहा होगा। उसके अलावा जब हमारे पास माइटोसिस, सॉरी, हमारे पास जब पोलन और ओव्यूल आपस में फ्यूज टुगेदर कर जाते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा होता है, माइटोसिस हो रहा होता है। और हमारे पास क्या कहते हैं, इसी वजह से 2 इज ऑल्सो अ डायग्राम दैट शोज द रोल ऑफ माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इस पूरी स्टेज में, ये वाली जो स्टेज में, इसमें तो हो ही माइटोसिस रहा होगा, ठीक है। देन 3 इज अगेन ग्रोथ, इसमें माइटोसिस है। 4 इज रीजनरेशन, ऑब्वियसली हमारे पास रिपेयर ऑफ डैमेज टू शो है माइटोसिस, सो ए इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? Which events are part of the mitotic cell cycle? I always say कि mitotic cell cycle का एक छोटा सा part होता है mitosis। Mitotic cell cycle में interphase भी आता है, mitosis भी आता है, cytokinesis भी आता है, so A is the correct answer. Which statement correctly describes the feature of a DNA molecule? It has two parallel strands. आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है two anti-parallel strands होता है। It has complementary bases all held together by three hydrogen bonds. नहीं, हमारे पास adenine and thymine are basically held by two hydrogen bonds. It has phosphodiester bonds that are formed by DNA ligase. हाँ, लैगिंग स्ट्रैंड में हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स ज्वाइन टुगेदर होते हैं, उसमें डीएनए लाइगेज जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स ही फॉर्म कर रही होती है बिटवीन द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, सो वी कैन होल्ड दिस। इट हैज अ बैकबोन ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा जी, एक सेकेंड, फिजा, व्हाट आर यू आस्किंग? या एंटी पैरेलल का मतलब है कि एक स्ट्रैंड जो है वो 5' टू 3' डायरेक्शन में होगा, तो दूसरा जो है वो आपका 3' टू 5' डायरेक्शन में होगा। दिस इज बेसिकली एंटी पैरेलल। ओके, बिटवीन सी एंड डी व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? क्या आपको लग रहा है कि सही आंसर होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अब बी में प्रॉब्लम क्या है? इट इज सेइंग इट हैज अ बैकबोन ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। Aren't phosphate group or the phosphate molecules part of the nucleotide? हमारे पास जो बैकबोन होती है उसको हम बुलाते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। सो इट हैज अ बैकबोन ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एंड शुगर्स, इट हैज अ बैकबोन ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एंड डीऑक्सीराइबोस। हमारे पास क्या कहते हैं, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स तो पार्ट ही न्यूक्लियोटाइड का है, मुख्तलिफ चीजें तो नहीं है। बैकबोन जो होती है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। इट एज अ बैक, क्योंकि कनेक्शन जो है वो हमारे पास सारे न्यूक्लियोटाइड्स का ही तो है। एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट होता है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड की शुगर से कनेक्ट कर रहा होता है। सो द थिंग इज कि फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो हमारे पास ये जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो बहुत वेग और ऑलमोस्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। Which diagram correctly shows the replication of DNA? अच्छा जी, की हमें दी हुई है कि एरो जो है, एरो का डायरेक्शन हमें बता रहा है डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन। डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन हमेशा 5' टू 3' हो रही होती है, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज द न्यू स्ट्रैंड इन द 5' टू 3' डायरेक्शन। श्योर अदीना, दिस वन 21। अच्छा जी, S1 is the leading strand and S2 is the lagging strand। अच्छा जी, ए में क्या हो रहा है? ए में ये हमारे पास देखो 3' एंड होगा, ये हमारे पास 5' एंड होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कभी भी डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन 3 to 5 नहीं हो सकता, इनकरेक्ट। बी में हमारे पास S1 में ये 3 प्राइम एंड ये 5 प्राइम। नाउ S1 को अच्छा जी, डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन 5 प्राइम to 3 प्राइम है। ओके, दिस इज बेसिकली योर लैगिंग स्ट्रैंड, यह आपका लैगिंग स्ट्रैंड है। तो हमारे पास क्या कहते हैं, S1 की जो की है दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज ऑपोजिट। लैगिंग स्ट्रैंड को इन्होंने लेबल किया हुआ है लीडिंग स्ट्रैंड के तौर पे। अब सी की अगर हम बात करें, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, सॉरी मैंने क्या, नहीं हमारे पास ये ऑप्शन की के साथ वो करे ना, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। हमारे पास जो S1 है दैट इज द लैगिंग स्ट्रैंड, राइट? डू यू ऑल एग्री कि S1 हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है? एनीबॉडी हु थिंक्स इट्स नॉट द लैगिंग स्ट्रैंड? या इट्स द लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, एक सेकेंड। हमारे पास अगर मैं आपसे पूछूं, एक स्ट्रैंड है, लेट्स से ये हमारे पास दो सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड है। कैन यू टेल मी कि हमारे पास इन दोनों में से, लेट्स से ये ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है, आप किसको लैगिंग बुलाओगे और किसको लीडिंग बुलाओगे? बी इज लैगिंग, ठीक है, ये आपका लैगिंग है। फिर आई ऑल्सो वांट यू टू आंसर कि आप किसको क्या कहते हैं, लैगिंग बुलाओगे और किसको लीडिंग बुलाओगे। ये लैगिंग है, ये लीडिंग है, राइट? फिजा, डू यू ऑल्सो अग्री? ए और बी की आइडेंटिफिकेशन है, परफेक्ट। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये 3 प्राइम एंड होगा, राइट? 5 के ऑपोजिट 3 आएगा, डू यू अग्री मुताहर एंड फिजा? तो ये ऑब्वियसली ये वाला जो सेक्शन होगा जो इसके पीछे होगा, ये पूरा 5 प्राइम वाला होगा। सो दिस इज बेसिकली जो हमारा ये स्ट्रैंड बन रहा है, ये टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा होगा S1 वाला, क्योंकि कोने पे हमारी डीएनए पॉलीमरेज नहीं लग सकती बिकॉज ये 5 प्राइम एंड नहीं है। डू यू अग्री कि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एसोसिएट? मुताहर, आर यू ऑल्सो विद मी? So that makes S1 the lagging strand. Is this now clear? Now S1, according to the key, they are saying is the leading strand. So can I say that B is the correct option? It is not the correct option. So अब सबकी confusion clear हो गई कि why B is incorrect? अदीना, आपका भी क्वेश्चन क्लियर हो गया? परफेक्ट। अब हम सी पर आ जाते हैं। अब हमारे पास अगेन ये 3 प्राइम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज नहीं लगेगी। बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज नहीं लगेगी, सो ये जो हमारा सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड है ये क्या हुआ, ये लैगिंग स्ट्रैंड हुआ। डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन इज 5 प्राइम to 3 प्राइम, ठीक है। अच्छा, तो S2 हमारे पास यहाँ लैगिंग है, ये 5 प्राइम to 3 प्राइम सिंथेसाइज हो रहा है, इसकी भी डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन सही है, दूसरे की भी डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन सही है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। तो क्या हम आपको कोई गलती नजर आ रही है इस क्वेश्चन में, या ये सही लग रहा है? सी सही है ऑप्शन। लेट्स ऑल्सो सी डी, और फिर हम सी को सिलेक्ट करते हैं। अब डी में क्या मसला है? डी में मसला ये है दैट ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। दे आर सेइंग दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, 3 to 5 डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकता, एंड हेंस डी इज आउट एंड वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर सी। Yes, Athena, you may ask your question now. My question was कि ये okay, so we've learned that DNA polymerase basically adds new nucleotides from the Hmm. 5 prime to 3 prime direction. तो ये एडिशन की बात हो गई, इसका मतलब ये है कि हमारा जो एंजाइम है वो 5 to 3 मूव कर रहा है। Yes. एंड देन सो बट आर डीएनए स्ट्रैंड्स देयर एंटी पैरेलल, तो जहां पे 5 होगा उधर 3 होगा, राइट? लाइक 5 के ऑपोजिट 3 और 3 के ऑपोजिट 5, Yes. इस तरह होगा। Yes. एंड देन और जो डीएनए स्ट्रैंड्स खुद होते हैं Hmm. वो दे आर
अच्छा, so this, okay, yeah, now I get it. बस, okay, ठीक है, I get it. Thank you. ठीक है। हमारे जो लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड होते हैं वो न्यू स्ट्रैंड्स को बुला रहे होते हैं, पुराने स्ट्रैंड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड्स को नहीं बुला रहे होते। जो नए बन रहे होते हैं उनको हम लैगिंग और लीडिंग के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं। जिसमें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनेंगे वो हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड है, जिसमें नहीं बनेंगे, स्मूथली रेप्लिकेशन होगी, वो लीडिंग स्ट्रैंड होगा। ठीक है। Oh, I thought you had to call the old ones leading or lagging. हम्म, हमारे पास ये जो पहले, कंफ्यूजन आती है। हाँ बोलो। I thought जो like 5 to 3 होंगे ना पहले वाले, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ones, वो लीडिंग होगा, और जो 3 to 5 होंगे प्री एग्जिस्टिंग वाले, वो लैगिंग होंगे। हमारे पास जो लैग आता है वो लैग ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की। लैग क्या होता है? बेसिकली हमारे पास बीच बीच में रुकना, ये होता है ना लैग। जी इंटरनेट जी लैग जी कर रहा जी। है, इंटरनेट बीच बीच में रुक रहा है, तो बीच बीच में हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड रुक रहा है कि नया जो बन रहा है वो रुक रहा है। नया जो बन रहा है वो। तो हम जो ये लीडिंग लैगिंग आइडेंटिफाई करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू द न्यूली सिंथेसाइज जो बन रहे होते हैं ना उनके थ्रू आइडेंटिफाई करता यस, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। है। Okay. अच्छा जी, आई थिंक वी डिड डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये फॉर सम रीजन रेडिट तरीन क्वेश्चन होता है बच्चों का, बट वी डिड डिस्कस दिस व्हेन वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 6 के टॉपिकल्स। अच्छा जी, ये आपके सामने है आरएनए कोडॉन व्हील। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, आरएनए कोडॉन को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। इट इज द इजीएस्ट थिंग। अगर बचपन में वो जो व्हील वाला गेम खेला था जिसमें कभी भी अच्छा प्राइस नहीं निकलता, ये बिल्कुल उसी गेम की तरह है। ठीक है। आपने एक इमेजिनरी क्या कहते हैं एरो को इमेजिन करना है। ठीक है। अब the RNA codon wheel is a tool used to find which amino acid would be translated from an mRNA sequence. कोडॉन पोजीशन 1 इज द सेंटर ऑफ द व्हील। अब हमारे पास जो एक अमीनो एसिड होता है वो एक ट्रिपलेट से बनता है। फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडमली हम ट्रिपलेट अज्यूम कर लेते हैं, AGC। ठीक है। अब हमारे पास ये जो बीच वाला है ना, जो बिल्कुल सेंट्रल वाला है, ये क्या होगा? ये आपका फर्स्ट जो बेस होगा, फर्स्ट जो कोडॉन होगा, ये उसके लिए। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये ट्रिपलेट कोड है ए, तो ये जो सेंट्रल वाला व्हील है ना, इसमें से आई विल पिक अपना क्या कहते हैं जो भी मैच कर रहा है। फर्स्ट पोजीशन से क्या मैच कर रहा है? ए मैच कर रहा है, तो मैं कहूंगी भाई पहला वाला तो ये हिस्सा है। अब आप जो नेक्स्ट मूव करोगे ना वो आप ए के रीजन में ही मूव करोगे, और किसी के रीजन में मूव नहीं करोगे। आपने एरिया अपना डेसिग्नेट कर दिया। अब जो आपका सेकंड व्हील है, सेकंड हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो सर्कल है, ये आपके सेकंड पोजीशन के लिए। ठीक है, जी वाली पोजीशन के लिए। अब आप इस एरिया में जी नहीं ढूंढोगे, आप अपने डेजिग्नेटेड एरिया में ही जी ढूंढोगे। सो इस एरिया में आपका जी क्या बना? ये बना। ठीक है। अब आप यूं ही मूव कर सकते हो और कहीं और नहीं डगमगा सकता। अब जो आपका थर्ड व्हील है, ये वाला जो थर्ड व्हील है, ये आप किसके लिए? इट इज फॉर द पोजिशन नंबर 3। अब आपके पास क्या कहते हैं थर्ड पोजिशन पे क्या है? थर्ड पोजिशन पर सी है। आप सी को आइडेंटिफाई करोगे, दिस वुड लीड यू टू योर अमीनो एसिड। सो यू वेंट लाइक दिस, AGC। दिस टोल्ड यू कि आपका कौन सा अमीनो एसिड बनेगा इस ट्रिपलेट से। आरएनए कोडॉन व्हील पढ़ना आ गया। एनी क्वेश्चंस? इट्स वेरी इजी, जस्ट इमेजिन एन एरो इन योर हेड, और वो एरो बेसिकली आपके तीनों बेसिस से गुजरना चाहिए, और तीनों बेसिस से गुजरता, अच्छा नहीं समझा, कोई बात नहीं। सबसे पहले ये समझ आ गया कि हमारे पास जो सेक्शंस बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं। इनर मोस्ट सेक्शन जो है दैट इज योर फर्स्ट, एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है। आरएनए कोडॉन व्हील हमें क्या बताता है कि एक जो कोडॉन है, एक कोडॉन में 3 बेसेस होती हैं। एक कोडॉन से कौन सा अमीनो एसिड बनेगा? तो मैंने रैंडमली एक कोडॉन अज्यूम कर लिया, AGC। जो इनर वाला सर्कल होता है, जो इनर सेक्शन होता है, दैट इज फॉर द फर्स्ट बेस इसकी। तो ऑब्वियसली ए है, तो मैं ए को सेलेक्ट कर लूंगी। डू यू यहां तक आर यू विद मी अदीना? नाउ दिस मीन्स कि मेरा जो एरो है वो इधर ही पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, वो यू की तरफ पॉइंट नहीं कर सकता। माई एरो वुड बी इन दिस क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट के अलावा और कहीं मेरा एरो नहीं जाएगा। इट वुड बी पॉइंटिंग समवेयर विद इन दिस क्वाड्रेंट। अब बाकी उसकी एग्जैक्ट पॉइंटिंग हम कैसे अज्यूम करेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे? Then we will look at G within this quadrant. Where is the G within this quadrant? It's over here. And then we look at the C. Now C हमारे पास क्या कहते हैं? Obviously it should be in line with G. मेरा ये वाला C नहीं हो सकता, because अगर मेरा ये वाला C होगा तो इसमें तो मेरा G पड़ ही नहीं रहा।
तो हमारे पास हमें इस तरह से ट्रेसिंग करनी है कि हमारे पास जो तीनों बेसिस हैं वो एक लाइन में आ रहे हो एंड दैट लाइन एंड्स टू एन अमीनो एसिड. So we have A, G, and then we have C that leads us to serine. Right? Actually, codon position 1 is in the center of the wheel, codon position 2 is in the middle of the wheel, and codon position 3 is near the edge of the wheel. The three letters on the outside edge of the wheel identify the amino acid. We have understood this part. Anybody who's still unclear about this? Clear ho gaya? किस तरह से we reach the identification of the amino acid through this wheel? The diagram shows a section of DNA coding for one amino acid. The template strand is outlined in a box and the DNA base sequence is read in the 5' to 3' direction. Now this is where the haunting starts. कि ये इससे हम कैसे predict करें amino acid? It's very simple. हमारे पास जो RNA है वो template strand से बनता है तो हम इस template strand को read करेंगे. ठीक है. Now हमारे पास template strand को हम कैसे read करेंगे? Through the bonds as Mutar said. Now अगर ये पहला वाला amino acid देखो, ये जो पहला वाला अमीनो एसिड है, इट इज हैविंग टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे पास, एक हमारी क्या होगी, प्यूरीन होगी, एक हमारी पिरिमिडीन होगी. प्यूरीन हमारे पास होती है एडेनिन और गुआनिन. सही है. और हमारे पास अगर हम उसकी बात करें पिरिमिडीन की, तो डीएनए में हमारे पास पिरिमिडीन होती है टीएनसी. ये आपकी प्यूरीन्स हैं, ये आपकी पिरिमिडीन्स हैं. नाउ कैन यू टेल मी वेदर दिस इज अ प्यूरीन और वेदर दिस इज अ पिरिमिडीन? इट्स अ प्यूरीन. प्यूरीन हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं. ठीक है. तो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स आर प्यूरीन. तो ये हमारे पास ए होगा. ठीक है. फिर दूसरे पे हम आते हैं, ये पिरामिडीन है क्योंकि सिंगल रिंग है इसका एंड इट इज एसोसिएटेड विद थ्री बॉन्ड्स. तो हमारे पास कौन सा वाला पिरामिडीन थ्री बॉन्ड से एसोसिएट करता है? सी. और ये भी हमारे पास सी ही है. तो हमारे पास जो डीएनए है टेम्पलेट स्ट्रैंड का वो क्या है? ए सी सी. नाउ हमारे पास ये जो व्हील है ये डीएनए कोडॉन व्हील नहीं है, ये क्या है? आरएनए कोडॉन व्हील है. तो वी हैव टू फिगर आउट द एमआरएनए कि इससे एमआरएनए क्या बनेगा. So the complementary mRNA would be UGG. Now let's figure out UGG हमें कौन सा अमीनो एसिड देगा. So UGG के लिए this is U, this is G, this is G. So this gives us TRP, which is option number C. Any questions? Is this clear? For students, sketch diagrams of the agoplast pathway and the symplast pathway. Which sketch is the most accurate diagram of the two pathways? Now यहाँ पे labeling उल्टी की हुई है. अच्छा, I'll explain question number 22. देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दो चीजें फिगर आउट करनी है. एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रैंड्स करना है और डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फिगर आउट करनी है. डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन इज ऑलवेज 5' to 3'. ठीक है. अब ए में क्या गलती है कि इन्होंने डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन दिखाया है 3 to 5, विच इज इनकरेक्ट. अब बी में क्या गलती है? बी में गलती ये है कि इफ आई आस्क यू कि हमारे पास जो ये S1 है, S1 क्या सिंथेसाइज हो रहा होगा? इसका ये 3' एंड हो रहा होगा, ये 5' एंड होगा. नाउ कैन यू टेल मी, कैन यू आइडेंटिफाई फॉर मी वेदर दिस वुड बी द लीडिंग स्ट्रैंड और द लैगिंग स्ट्रैंड? दिस वुड नॉट बी द लीडिंग स्ट्रैंड. लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है? लीडिंग स्ट्रैंड वो होता है जिसके एंड पर डीएनए पॉलीमरेज आकर एसोसिएट कर सके. नाउ डीएनए पॉलीमरेज वुड ऑलवेज एसोसिएट एट द 5' एंड. ठीक है. तो हमारे पास वो वाला स्ट्रैंड, वो नया स्ट्रैंड जिसके एंड पर डीएनए पॉलीमरेज नहीं आकर एसोसिएट कर सकता, दैट इज नोन एज द लैगिंग स्ट्रैंड. ओवर हियर द डीएनए पॉलीमरेज वुड नॉट एसोसिएट इटसेल्फ. डीएनए पॉलीमरेज यहाँ है, ऐसे स्ट्रैंड को हम क्या बुलाते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड बुलाते हैं. इज दिस क्लियर फॉर द लैंड? या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? ओके. सो S1 would be what? S1 is our lagging strand. Now the problem is कि हमारे पास S1 की आइडेंटिफिकेशन है लीडिंग स्ट्रैंड. और दिस इज द रीजन व्हाई वी आर गोना कैंसिल ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन बी में जो लेबलिंग हुई है वो गलत हुई है. ठीक है. व्हाई सी इज करेक्ट? बिकॉज सी को आप देखो, सी में जो S2 है उसके देखो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आकर एसोसिएट नहीं कर सकती, व्हिच मेक्स इट द लैगिंग स्ट्रैंड. S2 according to the key is the lagging strand.
S1 is the leading strand और डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन दोनों का सही है, दोनों 5 प्राइम टू 3 प्राइम रेप्लिकेट कर रहे हैं एंड हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इज दिस नाउ क्लियर? अच्छा जी, सिम्प्लास्ट पाथवे एंड एपोप्लास्ट पाथवे की आइडेंटिफिकेशन। नाउ यहाँ पर लेबलिंग उल्टी की हुई है। सिम्प्लास्ट पाथवे इज अ सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन वाला पाथवे, व्हेयरएज द एपोप्लास्ट पाथवे इज अ सेल वॉल वाला पाथवे। अच्छा जी, अगेन रॉन्ग लेबलिंग। नाउ सी, सी में they have labeled the apoplast pathway correctly and the symplast pathway correctly. However, the issue is कि हमारे पास the apoplast pathway is blocked at the Casparian strip. हमारे पास जो water molecules हैं, they cannot cross the Casparian strip. They are forced to enter into the symplast pathway at the Casparian strip. So C is incorrect. Now, if you look at D, the labeling of the apoplast pathway and the symplast pathway is correct. And at the Casparian strip, हमारे पास जो water है, it is not crossing the Casparian strip. Instead, it is being forced to move via the symplast pathway. Okay, another interesting question. The photomicrograph shows some xerophytic adaptations in leaf tissue. Xerophytic adaptations का मतलब क्या है? वो plants जो कि survive कर सकते हैं in dry conditions. Which row shows the correct functions for structures 1, 2 and 3? 1 हमारे पास क्या है? 1 हमारे पास trichomes है जो hair like extensions होती हैं. 1 is that. 3 and 2. 2 हमारे पास sunken stomatas होंगे. And 3 is basically it's basically your waxy cuticle. ये आपका cuticle है 3, जो कि हमें पता है 0.5 में extra waxy या extra thick होता है. Actually, this is actually more appropriate, more accurately, it was the space between sunken and stomata. अच्छा जी, जो बेसिकली डिप्रेशन होता है ना जीरोफिटिक एडेप्टेशंस में, तो हमारे पास ये वो स्पेसेस हैं बिटवीन संकन एंड स्टोमेटा जहाँ पे वाटर ट्रैप हो जाता है. अच्छा जी, which row shows the correct functions for structure 1, 2 and 3? Yeah, we do have thick epidermis. Thick epidermis से मुराद ये है कि normally हमारे पास single layer of epidermal tissues होता है. In 0.5, we can have 2 to 3 layers of the epidermal tissue to reduce the water loss from the cuticle surface. Okay, reduces the water vapor concentration gradient between the outside and the inside of the leaf. हमारे पास आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द लीव में वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कब रिड्यूस होता है? जब हमारे पास एनवायरमेंट ह्यूमिड, जब भी हमारे पास एनवायरमेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट ह्यूमिड हो जाती है तो हमारे पास इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता इन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एरियाज ऑफ द लीव. इसीलिए हम कहते हैं कि जब ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब जब एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होता है तो हमारे पास जो वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो रिड्यूस हो जाता है. यू ऑल हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कि अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट ह्यूमिड होगा, उसमें बहुत ज्यादा वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो हमारे पास जो वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है बिटवीन द इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द लीव दैट वुड बी लेस. यू ऑल हैव दैट अंडरस्टैंडिंग. तभी हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी जब होती है तो हमारे पास लेस ट्रांसपिरेशन होती है. अच्छा, नाउ हमारे पास इफ यू टॉक अबाउट these structures, can you tell me कि which structures basically contribute to making the outside environment humid? Outside environment humid से मेरा मतलब ये है कि कौन से structures ऐसे हैं जो external environment में water vapor को trap करेंगे, और जब वो water vapor को external environment में trap कर देंगे तो external environment को humid बना देंगे. जब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ह्यूमिड बना देंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो रिड्यूस हो जाएगा. सो बिटवीन 1, 2 and 3, which structures are responsible for that? Very good. The trichomes and the space between the sunken stomata. What would happen is that water vapor basically would get trapped in these spaces. Water vapor diffuse out हुआ और diffuse out होने की बजाय diffuse out होके वो escape कर जाता, वो इंस्टेड क्या हो जाता है? वो ट्रैप हो जाता है बिटवीन दी ट्राइकोम्स एंड द संकन स्टोमेटा के बीच की स्पेसेस. और जब वाटर वेपर कहते हैं ट्रैप हो जाता है और वो एस्केप नहीं कर पाता तो हमारे पास जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो ह्यूमिड हो जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है बिटवीन द इनसाइड ऑफ द लीफ, इनसाइड ऑफ द लीफ क्या है? ये वाला सारा हिस्सा, और ये आउटसाइड ऑफ द लीफ है. तो हमारे पास जब वाटर वेपर ट्राइकोम्स और इन स्पेसेस में ट्रैप हो जाते हैं तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट ह्यूमिड हो जाती है, जिसकी वजह से द ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द वाटर वेपर इज रिड्यूस्ड.
सो हमारे पास 1 and 2 ओनली, वैसे भी हमें आंसर मिल गया, बट लेट्स सी के बाकी दो कॉलम सही है कि नहीं. रिड्यूसेस इवेपोरेशन फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. अच्छा, हमारे पास जो इवेपोरेशन बेसिकली क्या है? इवेपोरेशन इज द conversion of water vapor, sorry, the conversion of moisture of water into water vapor. Now, हमारे पास क्या कहते हैं, जो ये कर्ल लीफ हो गया या हमारे पास जो संकर स्टोमेटा होते हैं, दे इंश्योर कि हमारे पास कम से कम जो सनलाइट है वो जो अंदर मीजोफिल सेल का मॉइस्चर है उस तक पहुंचे. कम से कम सनलाइट पहुंचेगी, कम से कम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हमारे पास मीजोफिल सेल्स तक जाएगा. कम टेम्परेचर जा रहा होगा म्यूजिकल सेल्स का, तो कम इवेपोरेशन होगी. सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन जीरोफाइट्स एंश्योर कि हमारे पास मिनिमल वाटर लॉस हो, बिकॉज यूरोपिटिक एडेप्टेशन का पर्पज यही होता है कि वो इवेपोरेशन को, ट्रांसपिरेशन को रोक सके, वाटर लॉस को रोक सके. ट्रैप्स अ लेयर ऑफ मॉइस्ट एयर. सो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कम होता है वो क्यों कम होता है? Trapping of water vapor की वजह से, and hence B is the most appropriate answer. Any questions? Anything that you guys want to ask about this? Which processes are required for the transfer of assimilates from a source cell into a phloem sieve tube? Active transport, yes. Facilitated diffusion, yes. Simple diffusion, yes. Option number A is the correct answer. Do you guys want to discuss this in detail? Yeah, can I skip to the next part, next question? अच्छा जी. When sucrose is loaded into the phloem, it has to travel from mesophyll cells to a companion cell and then into the phloem. Which row shows the relative concentrations of sucrose in each type of cell in order for this process to take place? अच्छा जी, हमारे पास let's draw it out. I always say कि अभी भी translocation type question आए तो it's better to draw these cells out. ये आपका है mesophyll cell. This is your companion cell and this is your फ्लोम सेफ ट्यूब. ठीक है, व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास जो फ्लोम सेफ ट्यूब है उसमें जो फ्लोम सैप है इसमें है ही आपके एसिमिलेट्स, ये भरी हुई है एसिमिलेट्स से. ठीक है, सो इट हैज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज. इसमें तो आपके पास सुक्रोज प्रेजेंट है, सम अमाउंट ऑफ शुगर इज प्रेजेंट ओवर हियर. नाउ अगर हम बात करें कंपेनियन सेल की, तो कंपेनियन सेल में क्या होके आ रही होती है सुक्रोज हमारे पास, वो आ रही होती है वह सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. यू ऑल आर अवेयर कि हमारे पास जो सुक्रोज आती है फ्रॉम द मेसोफिल सेल टू दिस कंपेनियन सेल, वो किसके थ्रू आती है? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आती है, राइट? एनीबडी हु इज अनफेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट कि हमारे पास सुक्रोज कम्स इनटू द कंपेनियन सेल बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट? इसका मतलब है कि हमारे पास लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज होती है यहाँ पर in comparison to the companion cell. And then sucrose is diffuses, is diffused, simple diffusion होती है via the plasmodesmata of sucrose from the companion cell into the phloem sieve tube. So इस पूरी रिलेशनशिप में कैन यू टेल मी कि इन तीनों एरियाज में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज कहाँ पर होगी? सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास मेसोफिल सेल में होगी, और हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर होगी? कंपेनियन सेल में हमारे पास हाईएस्ट होगी. अच्छा, I'll explain again. Just give me a second. I have to grab the charger. एक सेकेंड, मैं 1 मिनट just charger डाल रही हूँ. Just give me a second. Now, हमारे पास क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल से जो हमारे पास मूवमेंट होती है सुक्रोज की, दैट इज वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट. डू यू अग्री अदीना कि हमारे पास मेसोफिल सेल से जो मूवमेंट होती है कंपेनियन सेल में वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंपेनियन सेल्स जो है वो H प्लस आयंस, यस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यस जी. तो हमारे पास दैट मीन्स कि मेसोफिल सेल में कम concentration of sucrose. That is why it's moving from a low concentration of sucrose to a high concentration of sucrose, right? अच्छा, आई डिड नॉट नो दैट. अभी चलें, ओके ओके. Yeah. हमारे पास companion cells have a high concentration of sucrose in comparison to the mesophyll cell. ठीक है.
तो हमारे पास क्या कहता है, मेसोफिल सेल्स हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ सुक्रोज, ठीक है। कंपेनियन सेल ऑन द अदर हैंड, कंपेनियन सेल से फिर फ्लोएम शीफ ट्यूब में हमारी सुक्रोज डिफ्यूज हो रही होती है। दिस मीन्स कि हमारे पास कंपेनियन सेल के पास मेसोफिल सेल से भी ज्यादा सुक्रोज है और फ्लोएम शीफ ट्यूब सेल्स के से भी ज्यादा सुक्रोज है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा सुक्रोज कहाँ पर होगी, इन द कंपेनियन सेल्स। लीस्ट होगी मेसोफिल सेल्स में और बीच में कहीं होगी हमारे पास फ्लोएम शीफ ट्यूब एलिमेंट में। Is this clear? Any questions, anybody? Yes, it's clear now. Thank you. Okay. Which feature of transport and plants is correct for xylem and phloem? It is passive. Phloem में हमारे पास active transport होता है, so it is not passive. It occurs by mass flow. Yes, it occurs from source to sink. हमारे पास xylem में source to sink movement नहीं होती. It occurs only in one direction. नहीं, हमारे पास phloem में bi-directional movement होती है. So B is the correct answer. The diagram shows an anterior view of a vertical section through the human heart. Which row shows the correct labels for the diagram? अच्छा जी, one they're calling it iota. Iota हमारे पास one तो नहीं है because हमारे पास iota is a steam thingy. This is basically your iota. ये हमारे पास basically क्या है? This is your pulmonary artery. सही है? One is your pulmonary artery. Two अगर हम देखें, so two is basically your pulmonic valve, which is your semilunar valve. फिर आपके पास जो three है, three आपके पास atrioventricular valve है, which is basically your tricuspid valve, and four is basically your vena cava, which is option number C. Pretty straightforward. Any questions about this? Any labeling which is confusing? What is the inner layer of veins and capillaries contain? Endothelium, because the innermost layer is known as the endothelium. The graph shows the changes in blood pressure and water potential across a blood capillary from the arterial end to the venous end of the capillary. What could result in an accumulation of excess tissue fluid? Accumulation of excess tissue fluid का मतलब है, okay, let's do this together. Accumulation of tissue fluid का मतलब है कि हमारे पास जो tissue fluid है वो वापस venous end में नहीं जा रहा, ठीक है? It's not going back into the venous end. Now, an increase in concentration of large proteins in the blood plasma. अच्छा, can you guys tell me कि अगर blood plasma में large proteins की concentration increase हो जाती है, तो इससे जो हमारी blood plasma है उसका जो water potential है, would that decrease or would that increase? It would decrease. Right. तो हमारे पास decreased water potential of blood. तो अगर हमारे पास decreased water potential of blood है, तो हमारे पास इन दिस केस ज्यादा अपटेक ऑफ टिश्यू फ्लूइड होना चाहिए बैक इनटू द ब्लड या लेस अपटेक ऑफ टिश्यू फ्लूइड होना चाहिए बैक इनटू द ब्लड? More tissue fluid should be, more tissue fluid goes back to blood. Is there anybody who disagrees with this relationship? Everybody agrees with this relationship? Yes, Fiza? मिस अगर टिश्यू फ्लूइड वापस ब्लड में चला जाता है वीनस एंड पे तो फिर um, जो ब्लड प्रेशर है वो दोबारा हायर नहीं हो जाना चाहिए? हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो हाई जो होता है वो किस वजह से होता है? हार्ट से जितना नजदीक कोई चीज हो उस वजह से होता है ना। हमारे पास आर्टरीज और आर्टीरियोल्स में हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है। क्यों होता है? क्योंकि दे आर रिसीविंग ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट। तो जो ब्लड प्रेशर हमारे पास ज्यादा होता है वो यूजुअली क्यों ज्यादा होता है? वो इसलिए ज्यादा होता है आर्टरीज में क्योंकि ब्लड बहुत प्रेशर के साथ उनमें पंप होता है। सो पंपिंग ऑफ द ब्लड की वजह से हमारे पास आर्टीरियल एंड पे हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। वो ब्लड वॉल्यूम वाली बात आपकी बिल्कुल सही है कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए। दैट इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट रिलेशनशिप।
बट अगर हम वीनस एंड को कंपेयर करें आर्टीरियल एंड से, तो आर्टीरियल एंड में सिर्फ ब्लड वॉल्यूम की वजह से हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, उनको एक पुशिंग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं हार्ट की वजह, हार्ट से, जिसकी वजह से उनमें ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा जी, एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है किसी भी वजह से, तो उस इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर की वजह से ज्यादा टिश्यू फ्लूइड जो है वो बन रहा होगा, यानी ज्यादा जो फ्लूइड कंटेंट है वो पुश आउट हो रहा होगा फ्रॉम द कैपिलरीज एंड इट वुड बी ऑक्यूपाइंग द टिश्यू एरिया। सो यस, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर अगर है तो देयर इज अ चांस कि हमारे पास जो टिश्यू फ्लूइड है वो ज्यादा अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए। अच्छा, अ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स इन टिश्यू फ्लूइड। अच्छा, अगर हमारे पास इन द टिश्यू फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि टिश्यू फ्लूइड का जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर रहा है। दिस मीन्स दैट इफ द टिश्यू फ्लूइड हैज अ ग्रेटर वाटर पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू द ब्लड प्लाज्मा, so more fluid re-enters blood. Do you all agree with this relationship? This is out. A decrease in blood pressure. A decrease in blood pressure would result in a less accumulation of fluid because less fluid would be pushed out of the blood. So this is also out. Option B is the correct answer. Any confusions, Adina? There was a confusion that you had. Can you ask me? The graph. देखो ये ग्राफ इन्होंने बहुत जनरल दिया हुआ है, ये हमें ग्राफ के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास एक कैपिलरी का डिस्टेंस है, ये आपकी कैपिलरी है, इस कैपिलरी का क्या कहते हैं, एक आर्टीरियल एंड है, एक आपके पास क्या कहते हैं वीनस एंड है। एंड देयर इज सेइंग दैट जब हमारे पास ब्लड मूव करता है फ्रॉम द आर्टीरियल एंड टू द वीनस एंड, तो देयर इज द ब्लड प्रेशर ड्रॉप। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री, हमारे पास जो वाटर पोटेंशियल ऑफ द ब्लड प्लाज्मा है दैट स्टेज रिलेटिवली कांस्टेंट, हमारे पास क्या कहते हैं बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा वाटर पोटेंशियल के अंदर। ठीक है। उसका रीजन ये हो सकता है कि हमारे पास ऑल्दो टिश्यू फ्लूइड बन रहा है, फ्लूइड हमारे पास क्या कहते हैं लीक आउट कर रहा है, बट हमारे पास क्या कहते हैं बिकॉज एट एवरी गिवन इंस्टेंस 85% ऑफ द टिश्यू फ्लूइड इज री एंटरिंग द वीनस एंड, तो हमारे पास इतनी ज्यादा चेंज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा नहीं आता नॉर्मल कंडीशंस में, जितना चेंज ब्लड प्रेशर में आ रहा होता है व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम द आर्टीरियल एंड टू द वीनस एंड, बिकॉज वीनस एंड पे हम रिकवर कर लेते हैं 85% ऑफ द फ्लूइड दैट वाज लीक्ड, बट जो ब्लड प्रेशर है उसकी रिकवरी नहीं होती व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम द आर्टीरियल एंड टू द वीनस एंड। डज दिस मेक सेंस नाउ? Which statement is correct about a RBC that has just entered a capillary in a respiring muscle? Just entered a capillary. There is a net decrease in chloride ions. There is a net decrease in hemoglobinic acid. There is a net increase in carbonic anhydrase. यहीं पे cancel कर दो. Carbonic anhydrase is an enzyme. Enzyme का कोई increase या decrease नहीं होता. वो जितनी present है RBC में उतनी ही present रहेगी. There is a net increase in carb amino hemoglobin. Okay. रेड ब्लड सेल अगर एक रिस्पायरिंग मसल में एंटर करे तो क्या चीज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? क्लोराइड आयंस डिक्रीज होंगे, हीमोग्लोबिनिक एसिड डिक्रीज होगा, या इंक्रीज इन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन होगा? एंड दिस इज अबाउट अ रेड ब्लड सेल, सो रीड विद रिस्पेक्ट टू अ रेड ब्लड सेल. Yes, there would be a net increase in carb amino hemoglobin. Anybody who wants me to explain this, that why A and B are incorrect? Okay, I assume at this point ग्राफ, ये जो ग्राफ है वो इतना बुरा नहीं लगता होगा आप लोगों को. अच्छा जी, the graph shows some blood pressure changes that occur in a human during one cardiac cycle. When does systole start and end? In the right atrium and in the right ventricle. अच्छा जी, हमारे पास ग्राफ उन्होंने किस साइड का दिया है? लेफ्ट साइड का दिया है. पूछ वो हमसे राइट साइड कर रहे हैं. इधर हमने थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी. देखो, जो एट्रिया है वो साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स साइमल्टेनियसली. तो जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तब राइट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा होगा तब राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा होगा. इट इज नॉट अ मिसप्रिंटिंग. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थॉट कि अरे ये तो हमें लेफ्ट साइड का ग्राफ दे के राइट साइड का पूछ रहा है. बिल्कुल, वो लेफ्ट साइड का ग्राफ दे के आपसे राइट साइड का पूछ रहा है टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास दोनों एट्रिया साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ठीक है.
अच्छा जी, अगर हम एट्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, व्हेन डज सिस्टोली स्टार्ट एंड व्हेन डज सिस्टोली एंड इन द राइट एट्रियम। अच्छा जी, हमारे पास प्रेशर इन लेफ्ट एट्रियम को अगर हम देखें, हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम, इट स्टॉप्स एट वी। हमारे पास सिस्टली की जो क्या कहते हैं, एट्रियल सिस्टली है, इट स्टॉप्स एट वी। एट्रियल सिस्टली स्टॉप्स एट वी। दिस इज ओनली प्रेजेंट इन दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन, तो हम बी और डी को कैंसिल कर देते हैं, ए और सी हमारे पास है। नाउ हमारे पास राइट वेंट्रिकल की अगर बात करें, ऑब्वियसली जैसे ही हमारे पास क्या कहते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड करती है, उसी पॉइंट पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करती है। सो दिस इज ऑल्सो द पॉइंट वेयर वेंट्रिकल systole starts and it ends when the pressure starts to drop beyond the aorta. So the ventricle systole ends over here. So this and this. So हमारे पास क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टी की अगर हम बात करें, सो यस, टी इज द पॉइंट जब हमारे पास एट्रियल प्रेशर इज ग्रेटर देन द वेंट्रिकुलर प्रेशर। तो या हमारे पास यहाँ पर जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। एनीबडी हु इज कंफ्यूज्ड अबाउट दिस ग्राफ? ओके, अंडरस्टैंड। कैन यू टेल मी व्हाट पार्ट ऑफ इट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? हमने कैसे अंडरस्टैंड किया कि कब स्टार्ट और एंड हो रहा है, या हमने किस तरह से राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम को रिलेट किया? द एट्रियम थिंग। अच्छा देखो, एट्रियल सॉरी एट्रियल सिस्टली का स्टार्ट और एंड समझनी है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। टी और वी वाली लेवल समझनी है, राइट? नो, हमारे पास एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कब रुकती है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तब रुकती है व्हेन द एट्रियल प्रेशर ड्रॉप्स बिलो द प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल। इज दिस व्हाट इज हैपनिंग? हमारे पास जो ये वाली लाइन है, जिसको मैं ट्रेस कर दूं, ये आपके पास एट्रियल प्रेशर की लाइन है। अब इस पॉइंट पे, पॉइंट वी पे, द प्रेशर ऑफ द एट्रिया ड्रॉप्स बिलो द प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल। इज दिस व्हाट इज हैपनिंग? तो हमारे पास अगर एट्रिया का प्रेशर वेंट्रिकल के प्रेशर से कम हो गया, कहना है इससे कि इस पॉइंट पर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुई और एट्रियल रिलैक्सेशन स्टार्ट हुई है एट पॉइंट बी एंड डायस्टोल स्टार्ट्स। परफेक्ट। Which statements about all bronchioles are correct? They have goblet cells. Bronchioles do not have goblet cells. So हमारे पास यहीं पे हमें हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। They have epithelial cells. Yes. They have muscle tissue. Yes. What is shown in the electron micrograph? सबसे पहले tell me, is it a scanning electron micrograph or is it a transmission electron micrograph? It is a scanning electron micrograph. Why? Because it is a 3D image. So C is out, D is out. अच्छा, between A and B, can you tell me, looking at the picture, कि आपको क्या नजर आ रहा है इस picture में? What would you choose, A or would you choose B? You would choose B. Why? You would choose B because अगर मैं zoom in करके आपको दिखाऊं तो clearly हमें RBCs नजर आ रहे हैं। RBCs हमें abundance में नजर आ रहे हैं, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, which has the RBCs in it. Which statement correctly describes infectious diseases? They are diseases caused by environmental factors that are not passed from another person. Sorry, this is out. They are diseases caused by a fault in the DNA. No. They are diseases caused by lack of nutrient in a diet. No. They are diseases caused by a pathogen such as bacterium, fungus, protococcus, or virus. Yes. Organism X produces molecule Y, which blocks the activity of 70S ribosomes. An experiment was carried out to investigate the effect of Y on bacterial cells. An agar plate with bacteria growing all over its surface had 4 valves cut into the agar. Different substances were added to each well, and the agar plate with bacteria was incubated for a week. The diagram shows the results after a week. अच्छा जी, what conclusions made from these results? अच्छा, इसको हम फिर से पढ़ते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है। हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म एक्स, और ये जो ऑर्गेनिज्म एक्स है ये प्रोड्यूस करता है एक मॉलिक्यूल वाई।
और ये जो मॉलिक्यूल वाई है, इट इज लाइक एन एंटीबायोटिक. व्हाई इज इट एन एंटीबायोटिक? क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है एक्टिविटी ऑफ 70s राइबोसोम्स को. सो बेसिकली इट इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस. इट इनहिबिट्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस. अब एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट हुआ टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वाई ऑन बैक्टीरियल सेल्स. हमने देखा, हमें ये देखना था कि जो ऑर्गेनिज्म एक्स मॉलिक्यूल वाई प्रोड्यूस करता है, ये मॉलिक्यूल वाई किस तरह से बैक्टीरियल सेल्स को अफेक्ट कर रहा है. उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक अगार प्लेट ली, ठीक है, और उस पर हमने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, ठीक है, और हमने उसमें 4 वेल्स जो हैं वो कट कर दिए, और उन 4 वेल्स में डिफरेंट सब्सटेंसेस वर एडेड टू ईच वेल एंड द अगार प्लेट वाज इंक्यूबेटेड फॉर अ वीक. अब वो जो 4 वेल्स हैं वो आपको ये 4 ब्लैक डॉट्स के फॉर्म में नजर आ रहे हैं. अब ये 4 ब्लैक डॉट्स क्या थे? अच्छा, एक वेल में उन्होंने खाली डिस्टिल्ड वाटर रखा. इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का इनका कंट्रोल सेटअप था. अब उन्होंने दूसरे वेल में कॉमनली यूज एंटीबायोटिक रखी. तीसरे वेल में दे यूज्ड अ concentrated solution made from the cytoplasm of lots of organism X cells. So organism X, जो कि ये इनहिबिटरी मॉलिक्यूल वाई प्रोड्यूस कर रहा था, इसका साइटोप्लाज्म लिया और इसके साइटोप्लाज्म की जो सोल्यूशन थी उसको इस फोर्थ वेल में रखा, सॉरी थर्ड वेल में रखा. और फोर्थ वेल में उन्होंने एग्जैक्टली पूरे के पूरे सेल्स जो थे ऑर्गेनिज्म एक्स के, वो उन्होंने प्लेस कर दिया. अब हमारे पास जोन ऑफ इनहिबिशन. जोन ऑफ इनहिबिशन क्या होता है? वो एरिया जहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाए, जहां पे हमें बैक्टीरियल ग्रोथ नजर ना आए. वो हमारे पास दो ही थे. Antibiotic basically stopped the growth of bacteria, and the concentrated solution of the organism X basically stopped the growth of bacteria. Distilled water had no effect on bacterial growth, and putting the intact cells of organism X did not have any effect on the bacterial growth. Which conclusions can be made from these results? Molecule Y functions as an antibiotic. Molecule Y cannot be released from cells of organism X. Molecule Y would also affect the synthesis of proteins from nuclear DNA in a human cell. What do you think about these 3 columns? आपको क्या लग रहा है, कौन सी स्टेटमेंट्स आई हैं? हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है, वी कैन से द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. व्हाई? बिकॉज हमने देखा कि अगर हमने इंटैक्ट सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्स रखे तो हमारे पास कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ पे फर्क नहीं पड़ा. यानी कि जो मॉलिक्यूल वाई है वो सेल से बाहर नहीं आया, इट स्टेज विद इन द सेल. सो जो मॉलिक्यूल वाई है, इट कैन नॉट बी रिलीज फ्रॉम द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्स. ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? वो हम इन के थ्रू क्या कहते हैं, प्रूव कर सकते हैं. इन दोनों को कंपेयर करके हम प्रूव कर सकते हैं. उसके बाद मॉलिक्यूल वाई फंक्शन एज एन एंटीबायोटिक. यस, इट फंक्शन एज एन एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक क्या करती है? बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देती है या उसको अफेक्ट करती है. अब हमारे पास इस रिजल्ट से हमें नहीं पता कि हमारे पास क्या कहते हैं, वुड द DNA of the human cells be affected or not. Plus, as अदीना मेंशन, हमारे पास क्या कहते हैं, 80s राइबोसोम्स होते हैं, 70s राइबोसोम्स नहीं होते. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Okay. A patient has had repeated infections from the same pathogen over a few months. The patient has been treated with the same antibiotic on each occasion. Which treatment could prevent an increase in the antibiotic resistance of the pathogen? हमें antibiotic resistance को रोकना है. A narrow spectrum antibiotic to treat a non-cellular pathogen. Non-cellular pathogen का मतलब होता है virus. Using an antibiotic for viral diseases does not stop the increase of antibiotic resistance. Instead, it promotes the increase of antibiotic resistance. A repeat prescription for the same antibiotic at a higher dose. अगर हम एक ही antibiotic बार बार use करें, it would increase antibiotic resistance, not prevent it. A specific antibiotic after testing for the pathogen. Yes, हमारे पास अगर हम specific antibiotic for the pathogen use करेंगे तो हमारे पास chances हैं कि इससे antibiotic resistance increase ना हो. A wide spectrum antibiotic to treat different strains of pathogen. Incorrect. So option number C is the correct answer. Any issues, any point that is unclear to any one of you? D नहीं समझ आया. अच्छा, देखो, हमारे पास हमारे जो वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है ना, they always
प्रोपोगेट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। उसकी वजह ये होती है कि वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बहुत सारी बीमारियों में हम यूज करते हैं, तो हम बहुत सारे पेशेंट्स को फॉर डिफरेंट पैथोजेंस वो एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जिसकी वजह से उस एंटीबायोटिक का जो यूज है वो बहुत ज्यादा है। जब भी हमारे पास किसी भी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का यूज बढ़ता है, हद से ज्यादा बढ़ जाता है फॉर वैलिड रीजंस भी, तो हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एनवायरनमेंट में उस एंटीबायोटिक की प्रेजेंस या यूजेज ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है इन द एनवायरनमेंट दे आर मोर दे वो डेवलप मोर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नैनो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से बाकी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसके खिलाफ डेवलप नहीं कर पाते। लेकिन वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया इससे एक्सपोज होते हैं, तो देयर इज अ चांस कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ज्यादा पहले वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के यूजेज की वजह से। ठीक है, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन होता है? Okay. A patient with kidney failure can be given a kidney transplant. In a kidney transplant, a healthy kidney is taken from another person and put into the patient's body. Sometimes donated kidney cells are killed by the patient's body, and this primary immune response T lymphocytes bind to antigens on the donated kidney cells and are activated. The statements describe the next stages of the primary immune response. Activated T lymphocytes secrete cytokines. B lymphocytes differentiate into plasma cells and make antibodies. T killer cells bind to antigens on donor kidney cells. T killer cells release toxins that destroy the donor kidney cells. T lymphocytes multiply by mitosis and differentiate into T killer cells. Okay. We have to tell the correct order that would take place. अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स हैं, दे वुड सिक्रीट साइटोकाइंस। तो हमारी कहानी यहाँ से शुरू होगी। Those cytokines would then क्या कहते हैं, what would happen? T killer cells release toxins that destroy the donor kidney cells. या हमारे पास फिर डिफरेंशिएशन होगी, और हमारे पास डिफरेंशिएशन के बाद टी किलर सेल्स बाइंड टू द एंटीजन ऑन डोनर किडनी सेल्स। टी किलर सेल्स रिलीज टॉक्सिन्स। जो हमारे पास सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है? 1, 5, 3 and 4. Is this clear? Anybody who's unable to understand this sequence? The diagram shows the simplified structure of an antibody. Which statement is correct? UNX allow the antibody to bind to two different antigens. नहीं, एक ही एंटीजन से बाइंड करते हैं। V allows the antibody to be flexible to bind to two antigens. Again, यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं? This part is correct. And can you guys tell me, is this part also correct? It is correct. क्योंकि हमारे पास दो एंटीजन से बाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर कैच ये है, अच्छा बताओ, सेम टू एंटीजन से बाइंड नहीं करेगी हमारी एंटीबॉडी। ये भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है। W can bind to one specific antigen. W is your constant region, not your variable region. X can bind with a specific phagocyte receptor. Phagocyte receptor हमारे यहाँ पर present होते हैं. So option number B is the correct answer. Clear? Any questions? Okay, great. So I shall be now seeing you guys inshallah on Saturday. Allah Hafiz, take care.